हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी लोगों का हमारे इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के पार्ट 3 वीडियो में। इसके अंदर हम क्वेश्चन नंबर 200 से लेकर के 300 तक करेंगे। मैं प्रोफेसर रवि रंजन सर फिर से आप लोगों का एक बार स्वागत करता हूं इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट में। जो लोग भी फर्स्ट टाइम ज्वाइन किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए। रेलवे के तमाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम इस एग्जामिनेशन सीरीज में कर रहे हैं और रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इंक्लूडिंग रेलवे एनटीपीसी स्पेशल बैच में हम लोग आगे के क्वेश्चंस करेंगे आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 202। तो व्हाट इज द मेन फीचर ऑफ माई स्टाम्प स्टार्टेड बाय इंडियन पोस्टल सर्विस फॉर पीपल ऑफ मुंबई। माई स्टाम्प नाम का एक फीचर स्टार्ट किया इंडियन पोस्टल सर्विस ने मुंबई के लोगों के लिए। तो आपको बताना इसका मेन फीचर क्या है। तो इसका मेन फीचर क्या है? टेक योर पर्सनल postal stamp. This is increasing the use of robotics banking. In future, financial transactions will be based on dash technology. So it will be based on wireless technology. IFSC is the full form of Indian Financial System Code. तो IFSC का फुल फॉर्म है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। इंटरनेशनल से कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है, इंडियन है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट? कौन सा डिफरेंट है? ऑड वन आउट। आपको बताना है कि कौन सा पार्ट क्या है, डिफरेंट है। तो ECS मीन्स इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, RTGS मीन्स रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, NEFT इज रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट्स, NEFT क्लियर है। लेकिन EMI इज इजी मंथली इंस्टॉलमेंट, तो ये ऑड मैन आउट है। तो ये जो सारा तीनों चीज है, इट इज यूज फॉर ट्रांसफरिंग मनी, राइट, इन इंस्टॉलमेंट्स, राइट। सो EMI is in installment, but what all the things are used for transferring money. Swiping a credit card is based on the theory of electromagnetic inductor, right? It is used the theory of electromagnetic inductor. Open market operation refers to the sale and purchase of government securities by RBI, who published biannual financial stability report. Financial stability biannual report was published by Reserve Bank of India on 11th February 2021 it was done. ठीक है, कौन सी तारीख को ये किया गया था? 11th January 2021 this report was published. When did the India change the decimal system of coin? Decimal system of coin was changed by India in which year? It was changed in the year April 1957. April 1957. What is the full form of CIBIL? The full form of CIBIL is Credit Information Bureau India Limited. Credit Information Bureau India Limited. In reference of retail payment settlement system, what is the full form of NPSCI? The National Payment Corporation of India is the full form of NPCI. How much share of government of India is in NABARD? In NABARD it is 99%. Branchless banking services firm. Branchless banking services firm Oxygen announced the strategy partnership with a bank in 2018. The bank whom is? That is FineCare Small Finance. In 2018 it was done.
branchless banking. Which of the following is related with NPA, non-performing assets? The full form of NPA is non-performing assets. That is banking. This term is used in banking. Basically, non-performing assets is referred to non-payment of bank loan or a debt. The rate at which RBI take loan from other banks is called reverse repo rate. At which rate RBI give loans to other banks is called repo rate. To collect money for project by use of cryptocurrency Bitcoin, DASH, Ethereum, Monero, Litecoin and Zcash by illegal means called initial coin offering. Recently on Jan 2018, so in that particular year, Finance Minister announced electoral bond by which bank these bonds can be purchased. So electoral bonds can be purchased by which bank? And that was on the 2018, and that is State Bank of India. Now, in 2018, who was the managing director of or CEO of Axis Bank? That was Sikha Sharma. Sikha Sharma in the year 2018 was the managing director of Axis Bank. Select the institute which is not related to this group. So IIT Mumbai, NIT Warangal, IIM Ahmedabad are educational institution, but SBI is a banking institution. So SBI is a different from this group, State Bank of India. Select the organization which is not related to the given group. IIM Ranchi, Axis Bank, IDBI Bank. These are all banks. But IIM Ranchi is a educational institute. So this is odd man out. This is odd out. For reforms of internal control of banks, what RBI said to do till April 30, 2018 to all banks? तो इंटरनल कंट्रोल बैंक्स के लिए आरबीआई ने 30 अप्रैल 2018 को क्या कहा था सारे बैंक को? टू ऐड स्विफ्ट विथ सीबीएस. स्विफ्ट ऐड करने के लिए, स्विफ्ट के साथ जुड़ जाने के लिए, और उसके साथ साथ सीबीएस कोर बैंकिंग सॉल्यूशन में सबको, मतलब सभी लोग, कोई भी बैंक के अकाउंट से पैसा निकाल सकता है. कोई भी बैंक से कोई भी आदमी कोई भी दूसरे बैंक से पैसा निकाल सकता है, चाहे एटीएम हो या किसी दूसरे बैंक में हो. ठीक है. नेक्स्ट, द फर्स्ट बैंक ऑफ बड़ौदा which had presented a facility for iris scan certification for आधार बेस्ड ट्रांजेक्शन्स. तो पहला बैंक ऑफ इंडिया कौन सा है आधार बेस्ड ट्रांजेक्शन्स के लिए? सो दैट इज एक्सिस बैंक. Which of the following bank is the India's first bank to start interactive humanoid ERA customer service? So that is HDFC Bank. ARDC is the branch of following banks. ARDC is the branch of following bank. तो आपको बताना है कौन सा है ARDC. एग्रीकल्चर रीफाइनेंस एंड डेवलपमेंट. ARDC का फुल फॉर्म क्या है? एग्रीकल्चर रीफाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन. रीफाइनेंस एंड डेवलपमेंट corporation. So ARDC is the branch of NABARD. What is the name of the chartered accountant who
and permanent member for a long period who appointed to prepare a document of fraud done by नीरव मोदी एंड नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स ऑफ बैंक। तो नीरव मोदी के खिलाफ जो कौन से चार्टर्ड अकाउंटेंट को परमानेंट मेंबर बनाया गया था लॉन्ग पीरियड के लिए, तो उनका नाम क्या था? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, YH मालेगांव। YH मालेगांव। तो पता होना चाहिए कि इसमें फ्रॉड कितने का हुआ था। 2018 की बात है ये, 20 फरवरी 2018, ठीक है। तो 1400 करोड़ पंजाब नेशनल बैंक का फ्रॉड हुआ था ये, 1400 करोड़ का। और ऐसा इंसिडेंट दोबारा ना हो इसके लिए इनको अपॉइंट किया गया था, YH मालेगांव को। ए बैंक आउटलेट ओपन 5 days इन ए वीक एंड, ए बैंकिंग आउटलेट जो है 5 दिन खुला रहता है एक हफ्ता में, और हर दिन कितने घंटे काम करता है? एवरी डे हाउ मेनी आवर्स? 4 hours। हाउ मेनी आवर्स? 4 hours। तो बैंक आउटलेट एक सर्विस यूनिट होता है जिसमें बैंक के स्टाफ और बिजनेस रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। 5 दिन तो कम से कम काम करेगा ये, 4 घंटे पर डे, ठीक है। जिसमें कि एसेट हो गया, चेक का डिपॉजिट हो गया, कस्टमर को लोन देना हो, ये मिनिमम है 4 hours पर डे। व्हाट इज द फॉर्म ऑफ BPLR? बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट। तो पॉवर्टी, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं इस चीज़ से, तो ऐसा नहीं होना है ना। BPL का फुल फॉर्म होता है बिलो पॉवर्टी लाइन। तो BPL यहाँ पे LR है, ये थोड़ा गड़बड़ नहीं होना चाहिए आप लोग का, ठीक है। तो BPLR बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट, ठीक है। इसमें जो कमर्शियल बैंक है, कमर्शियल बैंक चार्ज करती है कस्टमर को, तो बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट, एक बेंचमार्क फिक्स किया गया है। इन December 2017, which private sector bank is included by the government of India to start a non-cash payment in E-नाम इलेक्ट्रॉनिक एग्रीकल्चर मार्केट? E-नाम मतलब इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। तो कौन सा प्राइवेट बैंक है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्ट किया नॉन कैश पेमेंट के लिए, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट के लिए? तो आपको नाम बताना है कौन सा बैंक को अपॉइंट किया गया इस चीज़ के लिए। ICICI बैंक। कौन सा बैंक? ICICI बैंक। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी का हेडक्वार्टर कहाँ है? सबको पता है, सिडबी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? लखनऊ में। कहाँ है? लखनऊ। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, तो इससे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सिडबी का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे? तो बेसिकली एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो MSME सेक्टर, मीडियम एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज, मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो इंडस्ट्रीज इंटरप्राइजेज होते हैं, उसको वो लोन प्रोवाइड कराती है, उसको ग्रो कराना होता है, ठीक है। कौन से ईयर में सिडबी आया था? तो आपको पता है 1990 में हुआ था, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? अभी हमने बताया आपको, लखनऊ में। नेक्स्ट, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन देयर आर 4 बैंक्स इन विच दे आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर एंड द फोर्थ इज डिफरेंट, आइडेंटिफाई द ऑड वन, ठीक है। तो एक्सिस बैंक प्राइवेट बैंक है, HDFC प्राइवेट है, ICICI प्राइवेट, SBI कमर्शियल बैंक है, गवर्नमेंट कमर्शियल बैंक, तो SBI इज ऑड वन आउट। हु इज द प्रेजेंट गवर्नमेंट ऑफ RBI? तो अभी तो न्यू 2025 में 2025 में संजय मल्होत्रा है, ठीक है, संजय मल्होत्रा। लेकिन आपको बताना है कि 2018 के टाइम पे गवर्नर ऑफ इंडिया कौन थे? तो उर्जित पटेल थे, ठीक है। 2016 8 नवंबर 2016 को डिमोनेटाइजेशन हुआ था, उस समय उर्जित पटेल ही क्या थे? गवर्नर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग प्रिपेयर्स द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? तो मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कौन करता है, ठीक है।
तो आपको पता होना चाहिए आरबीआई के गवर्नर करते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो कौन करते हैं? आरबीआई के गवर्नर। पीसीए a supervisory mechanism for suitable financial situation of any bank। पीसीए का फुल फॉर्म क्या है आपको बताना है? प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। क्या फुल फॉर्म है? प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। इसके अंदर क्या होता है कि जो वीक फाइनेंशियल बैंक होते हैं ना, जो कमजोर होते हैं, उसके ऊपर तुरंत एक्शन लेना होता है कि उसके पास नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कितने हैं, क्या है। PCA supervisory system of financial condition of banks, full form is prompt corrective action। इट्स नॉट कलेक्टिव, इट्स करेक्टिव। करेक्ट करना है उसको। वीक बैंक जो होते हैं ना, वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कहते हैं, कितना ज़्यादा कर्ज दे दिया, लोन दे दिया, नहीं चुका पा रहे लोग, रिकवर नहीं कर पा रहा, तो उसके लिए प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, PCA फुल फॉर्म। डैश इज द ओल्डेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक ऑफ इंडिया। सब लोगों को पता होना चाहिए द ओल्डेस्ट जो है वो कौन सा है? वो है इलाहाबाद बैंक। ठीक है, इलाहाबाद बैंक इज द ओल्डेस्ट बैंक ऑफ इंडिया। तो अब सवाल ये उठता है कि कैसे पता चले कि ये ओल्डेस्ट है? तो आपको पता होना चाहिए 1865 में इलाहाबाद बैंक आया था। बैंक ऑफ बड़ौदा 1908 में आया था। बैंक ऑफ इंडिया 1906 का बैंक है, और आंध्रा बैंक 1923। ठीक है, तो 1865 इज द ओल्डेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक ऑफ इंडिया। 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आया था, नेशनलाइजेशन हुआ था, मर्जर हुआ था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया से। द ओल्डेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक ऑफ इंडिया इज इलाहाबाद बैंक। अब यहाँ पर दिया हुआ है आपको पहला ऑप्शन इलाहाबाद बैंक। In which of the following banks according to East India Company was not of the quasi central banks in 1880? ठीक है, बैंक ऑफ ट्रेवनकोर। तो आपको पता होना चाहिए बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ कलकत्ता तीनों मिल करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बने थे। ठीक है, जिसको बाद में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम दिया गया था, बट क्वासी सेंट्रल नहीं था ईस्ट इंडिया कंपनी का बैंक ऑफ ट्रेवनकोर। मैं थोड़ा सा और क्लैरिटी रख दूं कि बैंक ऑफ बॉम्बे जो है 1840, बैंक ऑफ बॉम्बे जो था 1840 में आया था। ठीक है, मद्रास 1843। ठीक है, और कलकत्ता 1806। तो कलकत्ता 1806 में आया था बैंक ऑफ कलकत्ता, फिर बैंक ऑफ बॉम्बे, फिर बैंक ऑफ मद्रास, तीनों जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पे ही आ गया था। ठीक है, इन इकोनॉमिक्स द मिनिमम इंटरेस्ट रेट एट विच बैंक कांट गिव लोन मोर देन इट फॉर दैट वर्ड इज यूज्ड इज, कौन सा वर्ड यूज किया जाता है? तो बेस रेट। क्या बोलते हैं उसको? बेस रेट। तो मिनिमम इंटरेस्ट रेट विच बैंक कांट गिव लोन मोर देन इट। ठीक है, तो मिनिमम इंटरेस्ट रेट जो फिक्स किया जाता है वो है बेस रेट। हु इज अपॉइंटेड द हेड ऑफ प्राइवेट बैंकिंग इन HDFC बैंक? तो ये उस समय पुराने क्वेश्चन है। राकेश सिंह उस समय के जो है HDFC बैंक के क्या थे? हेड थे। By which of the following organization the interest rate of banks are fixed and regulated? तो बैंक का इंटरेस्ट रेट कौन करता है डिसाइड, और रेगुलेट कौन करता है? तो आपको ये पता होना चाहिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, हु इज द फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया फैसिलिटेट इमरजेंसी PPF फंड, पब्लिक प्राइवेट फंड? ठीक है, तो अभी यहाँ पर PPF का फुल फॉर्म होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। PPF का फुल फॉर्म क्या होता है? पब्लिक
प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड, ठीक है। पीएफ में जब से पैसे कटते हैं ना लोगों के, जो लोग जॉब करते हैं, तो पहला बैंक कौन था जिसको इमरजेंसी पीपीएफ अकाउंट ओपन किया था उसने? तो बताइए उस बैंक का नाम क्या था? उस बैंक का नाम था आईसीआईसीआई बैंक। कौन सा था? आईसीआईसीआई बैंक। विच प्राइवेट बैंक इज इनकॉर्पोरेटेड विथ सेंट्रल बैंक टू डू कैशलेस पेमेंट ऑन ई नाम पोर्टल? कौन सा प्राइवेट बैंक था जो सेंट्रल बैंक के साथ कैशलेस पेमेंट ई नाम पोर्टल के साथ किया गया था? तो जस्ट वही है वो, आईसीआईसीआई बैंक, ठीक है, ई नाम पोर्टल। So we have done with the chapter. So now we will start with the next new chapter, chapter number 6, that is inflation. What is the name of the chapter? Inflation. इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई। चलिए, नेम द रीजन वेयर द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929 स्टार्टेड। तो ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929 स्टार्टेड नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में बहुत बड़ा डिप्रेशन आया था। Which of the following is used for calculating dearness allowance to government employees for increase in prices in India? जब देश में महंगाई बढ़ती है ना, तो महंगाई भत्ता मिलता है। तो कौन सा तरीका यूज किया जाता है डियरनेस अलाउंस को कैलकुलेट करने के लिए जब देश में महंगाई बढ़ती है? तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, CPI IW, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, ठीक है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, CPI IW। नेक्स्ट, विच बैंक वाज लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट बॉन्ड इंडेक्स सीरीज फॉर फॉरेन इन्वेस्टर्स इन 2017? तो कौन सा बैंक लॉन्च किया गया था इंडिया का फर्स्ट बॉन्ड इंडेक्स सीरीज फॉर इन्वेस्टर्स के लिए 2017 में? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इन द कंटेक्स्ट ऑफ इन्फ्लेशन व्हाट डज CPI मीन्स? CPI का फुल फॉर्म क्या है आपको बताना है। तो अभी हमने जस्ट बात किया था कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। व्हेन प्राइस रेट आर ग्रोइंग बिटवीन 20% to 100% और मोर, जब प्राइस रेट 20% से 100% या उससे ज़्यादा बढ़ जाए तो उसे क्या बोलते हैं? उसे क्या कहते हैं? अगर 20% से या 100% तक या उससे भी ज़्यादा बढ़ जाए तो उसको बोलते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। क्या बोलते हैं? हाइपर इन्फ्लेशन, ठीक है, जिसमें कि गुड सर्विस का जो प्रोडक्ट का दाम होता है वो 50% से ज़्यादा बढ़ जाता है। यानी 100 रुपये का चीज़ अब 200 में बिकने लग जाए या 1000 रुपये का चीज़ 2000 में बिकने लग जाए, 50% अगर मोर ज़्यादा हो गया तो। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट प्राइस इफ इंक्रीजेस then consequently many product price will also increase which result will be inflation? अगर प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा तो उसके साथ साथ और भी चीज़ों की प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ जाते हैं। तो किस टाइप का इन्फ्लेशन इस चीज़ के अंदर देखने को मिलता है? रिजल्ट विल बी द इन्फ्लेशन। कौन से डिपार्टमेंट में? तो आप सभी लोग को पता होगा कि अगर पेट्रोल का दाम बढ़ा तो सारे प्रोडक्ट का दाम बढ़ जाता है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट करने में पेट्रोलियम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो पेट्रोल का दाम अगर बढ़ा तो हर प्रोडक्ट का प्राइस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, ठीक है। पेट्रोलियम का दाम बढ़ा तो सभी लोग को पता है ये चीज। पोस्ट कोविड-19 के बाद तो लगभग सारी चीजों के दाम बढ़ चुके हैं। इन 2014 से 14 में विच इंडेक्स वाज यूज्ड फॉर RBI फॉर एस्टिमेशन ऑफ इन्फ्लेशन? महंगाई का पता लगाने के लिए 2014 में RBI ने कौन सा टूल का यूज़ किया था या क्या चीज़ का यूज़ किया गया था? तो अभी हमने जस्ट बात किया था कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स,
महंगाई का पता लगाने का यही तरीका होता है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अर्बन एंड रूरल दोनों तरीके का। इन इकोनॉमी वेरी डीप लॉन्ग एंड पेनफुल डिसीजन इज कॉल्ड। ठीक है, बहुत गहरा, लंबा और बहुत तकलीफ या दर्दनायक जो रिसेशन होता है इकोनॉमी में, वो कौन सा होता है? तो वो डिप्रेशन होता है। कौन सा होता है? डिप्रेशन। ठीक है, डिप्रेशन में क्या होता है, जी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो होता है और जीडीपी जो होता है, दोनों नेगेटिव चला जाता है। दोनों नेगेटिव होता है। जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ये भी नेगेटिव, प्रोडक्शन कम, सर्विसेज कम, डिप्रेशन में चला जाता है। ठीक है, फ्यूचर प्रोफेशन, फ्यूचर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है। ठीक है, करेंसी का डिप्रिसिएशन हो जाता है, डेप्रिसिएशन हो जाता है। 1929 एडी में ऐसा हुआ था। ठीक है, 10 से 12 साल तक जो है डिप्रेशन हुआ था। तो अभी मैंने आपको बताया भी था कि नॉर्थ अमेरिका की वो बात थी। ठीक है, ये ऐसा देखने को मिला था, रिसेशन आया था एक्सट्रीम लेवल का। नेक्स्ट, in economy the situation which he saw that the price of market increases, the price of market increases in inflation। जब प्रोडक्ट का दाम बढ़ जाता है, मार्केट में चीजों के सामान के दाम बढ़ जाते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन बोलते हैं, महंगाई बोलते हैं। और जो प्राइस ऑफ करेंसी है ना, वैल्यू ऑफ करेंसी घट जाता है। Which of the following index is used for the measurement of headline inflation in India? ठीक है, तो देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेजरमेंट ऑफ हेडलाइन इन्फ्लेशन। तो अभी तक हम बात कर रहे थे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की, लेकिन अब हम बात करेंगे होलसेल प्राइस इंडेक्स के बारे में। किसके बारे में? होलसेल प्राइस इंडेक्स, जिसमें एवरेज प्राइस जो है कमोडिटी का, ठीक है, एवरेज प्राइस बढ़ जाता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिया स्टॉक एक्सचेंज is making plan to use its own initial public offering IPO? तो कौन सा खुद का है जो IPO लॉन्च करना चाह रहे हैं इंडिया स्टॉक एक्सचेंज के? तो सब लोगों को ये बात पता होगा, लेकिन इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं हम लोग, और नया चैप्टर आ चुका है हमारे पास, चैप्टर नंबर 7, दैट इज कैपिटल मार्केट एंड स्टॉक एक्सचेंज। कैपिटल मार्केट एंड स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, तो खुद का आईपीओ कौन लॉन्च करने की बात हो रही है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, मुंबई में इसका हेड ऑफिस है। ठीक है, तो इंडिया स्टॉक एक्सचेंज अपना खुद का आईपीओ लॉन्च किया, जिसका नाम क्या था? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। विच गवर्नमेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच गवर्नमेंट organization is the principal regulator of all the investors operating in the Indian securities market? तो this is SEBI, Securities and Exchange Board of India। ठीक है, SEBI, जिसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पर है? तो कमेंट सेक्शन में बताएंगे आप लोग। तो प्रिंसिपल रेगुलेटर कौन है इंडियन सिक्योरिटीज मार्केट का? सेबी है। ठीक है, चलिए, बिल्कुल करेक्ट जवाब दिया लोगों ने। मुंबई, मुंबई जो है सेबी का हेडक्वार्टर है। द सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन, कौन से ईयर में हुआ था? 1992 में हुआ था, याद रखेंगे, वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1992। SEBI establishment year 1992. In India, which is the main regulator authority of stock market? SEBI establishment year 1992. In financial field, FCCB
स्टैंड्स फॉर फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड। एफसीसीबी का फुल फॉर्म क्या है? फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, जो हमने अभी बताया भी, और यही ऑप्शन में है हमारे, मुंबई। वेयर इज एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे? मुंबई में है। कहाँ पे? मुंबई में। सेंसेक्स, सेंसेक्स इज एन इंडेक्स ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। टॉप डैश कंपनीज, टॉप हाउ मेनी कंपनीज? सेंसेक्स 30 कंपनीज का जो है, टॉप 30 कंपनीज के बारे में ये डिस्कशन होगा, सेंसेक्स 30। According to recommendations of which committee was NSE, National Stock Exchange, established in India? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का कौन से कमिटी के रिकमेंडेशन पे स्टार्ट किया गया था? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर ध्यान रखेंगे। फेरवानी कमेटी। कौन सा? फेरवानी कमेटी। ठीक है, निफ्टी 50 बोलते हैं, निफ्टी 50, निफ्टी 50। क्लियर है सब लोग को? एफडीआई का मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, सभी लोग को पता है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसमें अदर कंट्री जो है दूसरे कंट्री के अंदर क्या करती है? इन्वेस्ट करती है और मैनेजमेंट शेयर लेती है उस कंपनी का। फुल डायरेक्ट, एफडीआई का फुल फॉर्म फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। किसी को कोई डाउट है अभी तक तो बता दीजिए कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। फेरा, फेरा का फुल फॉर्म क्या है? तो फेरा का फुल फॉर्म क्या है? फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। ये 1 जनवरी 1974 में आ गया था। ठीक है, रजिस्टर्ड कंपनी डोमेस्टिक या फॉरेन कंपनी होता है, तो इसके अंदर फॉरेन एक्सचेंज एक्ट है, जो 1973 में पार्लियामेंट में पास किया गया था। फेरा, FERA, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। टू परचेज ऑफ लोकल प्रॉपर्टी इंक्रीजिंग इन एग्जिस्टिंग मनी बाय आउटर सोर्सेज इज कॉल्ड। लोकल प्रॉपर्टी खरीदनी है तो बाहर के सोर्सेज एग्जिस्टिंग मनी का यूज अगर हम करते हैं तो उसको हमें क्या कहते हैं? कैपिटल इनफ्लो। क्या बोलते हैं? कैपिटल इनफ्लो। ठीक है, तो इसके अंदर आउटर सोर्स से हमारा जो है इन्वेस्टमेंट इंपोर्ट होता है, अलग अलग ट्रेड कंडीशंस होते हैं उसके अंदर। बुल एंड बियर वर्ड इज यूज्ड इन, सबको पता है स्टॉक एक्सचेंज में यूज किया जाता है, बट यहाँ पे आप लोगों को क्या दिया है? शेयर मार्केट। क्या यूज किया गया है? तो बुल एंड बियर किस में यूज किया जाता है? शेयर मार्केट में यूज किया जाता है। ठीक है, बुल का मतलब क्या होता है? इंक्रीजिंग। ठीक है, बियर का मतलब डिक्रीजिंग। बुल का मतलब क्या होता है? इंक्रीजिंग, और बियर मतलब डिक्रीजिंग। ठीक है, शेयर मार्केट में यूज किया जाता है। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज द एशियाज फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज? एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इज द एशियाज फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज। तो सवाल ये उठता है कि कौन से ईयर में स्टैब्लिश हुआ था? तो स्टैब्लिश हुआ था 1875 में। ठीक है, इंडियन कैपिटल मार्केट को ये इट वॉज ए प्रोमिनेंट प्लेयर इन इंडियन कैपिटल मार्केट। विच रोड इज अ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लोकेटेड? कौन से रोड में है ये? तो आप लोगों को पता होगा, ये दलाल स्ट्रीट, इसका नाम ही है दलाल स्ट्रीट। ठीक है, 1875 में एस्टेब्लिशमेंट हुआ था।
और इन विच ईयर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज वाज एस्टेब्लिश्ड? 1875, अभी हमने बताया आपको। सेबी इज सिचुएटेड इन, तो सबको पता है, मुंबई। ठीक है। आफ्टर एप्पल, विच इज द सेकंड कंपनी टू रीच $900 बिलियन मार्केट कैप? एप्पल के बाद दूसरी जो कंपनी है $900 बिलियन मार्केट कैप को टच करने वाली थी, वो है अमेजॉन। जेफ बेजोस इसके सीईओ थे, फाउंडर थे। ठीक है, ठीक है। आपको पता होगा एक इंटरेस्टिंग चीज अमेजन के बारे में, कि इसका जो पुराना नाम था वो था कैडाब्रा कंपनी। अमेजोन का पुराना नाम क्या था? कैडाब्रा, CADAB, कैडाब्रा कंपनी। 1994 में बाद में उसका नाम अमेजोन रखा गया था। अमेजोन लार्जेस्ट रिवर है पूरी दुनिया का और बिगेस्ट ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी बना था। पूरी दुनिया का सबसे लार्जेस्ट रिवर का नाम अमेजोन है। चलिए, फॉर क्विक एक्शन इन प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट्स, सेकेंड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड डैश स्टार्टेड बाय यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। गवर्नमेंट का डिसइन्वेस्टमेंट करना हो तो सेकेंड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड कौन सा है जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ने स्टार्ट किया था? तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा आ रहा है चैप्टर नंबर 8 और इसका नाम क्या है? बजट एंड पब्लिक फाइनेंस। बजट एंड पब्लिक फाइनेंस, या फिर हम बोल सकते हैं एक और टॉपिक है जिसका नाम है फिस्कल पॉलिसीज, या फिर हम बोल सकते हैं एक टॉपिक और हम पढ़ेंगे इसी के अंदर, फाइनेंस कमीशन। चलिए, विच ईयर्स बजट, नेक्स्ट तो हम बात कर रहे हैं फॉर क्विक एक्शन इन प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट सेकेंड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड स्टार्टेड बाय यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, दैट वाज भारत 2022। भारत 22, तो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड था। तो चलिए अब नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, बजट एंड फाइनेंस पब्लिक फाइनेंस, फिस्कल पॉलिसीज एंड फाइनेंस कमीशन। इन विच ईयर्स बजट वाज कॉल्ड एज अ ब्लैक बजट इन इंडिया? तो 1973 1974 जो था उस समय पे इसे ब्लैक बजट बोला जाता था। जिस समय पे इकोनॉमिक स्ट्रेस आ गया था, ठीक है, मॉनसून पूरी तरह से फेल हो गया था इंडिया 1971 के ही टाइम पे अगर हम बात करें, ठीक है, बांग्लादेश वॉर चल रहा था, 550 करोड़ रुपए का डेफिसिट हो गया था देश में। ठीक है, चलिए, तो 1973-74 जो है ब्लैक बजट कहला रहा था। इन इकोनॉमिक्स टर्मिनोलॉजी NSDL का फुल फॉर्म क्या है? तो पता होना चाहिए आप लोगों को, नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड। नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड, NSDL का फुल फॉर्म। ठीक है, अगस्त 1996 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। फ्रॉम डैश ऑनवर्ड्स इकोनॉमिक सर्वे इन इंडिया हैज बीन डीलिंक्ड फ्रॉम द यूनियन बजट। तो कौन से साल से इकोनॉमिक सर्वे को जो है यूनियन बजट से अलग कर दिया गया था? तो 1964 की बात है। ठीक है, तो 1964 को बजट को इकोनॉमिक सर्वे से क्या कर दिया गया था? लिंक हटा दिया गया था, डीलिंक कर दिया गया था। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया। अब यूनियन बजट सेपरेटली पेश होता है। इन विच ईयर वाज सर्विस टैक्स फर्स्ट इम्पोज्ड इन इंडिया? तो सर्विस टैक्स फर्स्ट कब इम्पोज किया जाता है? ठीक है, 1994। तो 1994 जो है में जो सर्विस टैक्स है पहले इम्पोज किया जाता है। द डिफरेंस बिटवीन द गवर्नमेंट्स टोटल एक्सपेंडिचर एंड इट्स टोटल रिसिप्ट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग इज कॉल्ड। तो
टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल रिसिप्ट का डिफरेंस होता है, उस डिफरेंस को क्या बोलते हैं? उसको हम क्या बोलते हैं? फिस्कल डिफिसिट। तो टोटल एक्सपेंडिचर और उसका डिफरेंस टोटल रिसिप्ट्स, इस दोनों का डिफरेंस को क्या बोलते हैं? फिस्कल डिफिसिट। तो फिस्कल डिफिसिट इज टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल रिसिप्ट का जो है क्या होता है? डिफरेंस। चलिए, हु प्रेजेंटेड फर्स्ट यूनियन बजट ऑफ इंडियन? तो सब लोगों को पता है पहला यूनियन बजट इंडिपेंडेंट इंडिया का कौन किए थे? तो आर के शानमुखन सेठी। आर के शानमुखन सेठी जो थे, उन्होंने फर्स्ट यूनियन बजट इंडिपेंडेंट इंडिया का पेश किया था उन्होंने। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्मिनोलॉजी इज यूज्ड फॉर डिक्लेरेशन ऑफ बजट? तो बजट पेश करने के लिए कौन सा टेक्नोलॉजी यूज किया था? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। निर्मला सीतारमन काफी बार ये जो है एनुअल बजट पेश कर चुकी है, ठीक है। जनरली ये लेदर बैग बोला जाता है। बजट का जो मीनिंग है, एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब है लेदर बैग। अब तो डिजिटल तरीके से पेश किया जाता है, डिजिटल टैबलेट का यूज करके। हु इज द फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया टू चेंज इट्स फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर? तो जनवरी में जनरली फाइनेंशियल ईयर होता है, लेकिन कौन सा स्टेट है जो बदल दिया अपने आप? उसे मध्य प्रदेश ने अपना फाइनेंशियल ईयर जनवरी से दिसंबर स्विच कर दिया था उसने। इन फाइनेंशियल ईयर फॉर पीरियड ऑफ पेंडिंग इलेक्शन, ठीक है, पेंडिंग इलेक्शन, एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर बाय लोकसभा इज कॉल्ड, ठीक है। पेंडिंग इलेक्शन रहा तो एक्सपेंडिचर जो लोकसभा का होगा उसे क्या बोलते हैं? उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं वोट ऑन अकाउंट। वोट ऑन अकाउंट आर्टिकल 116 116 ए यूज होता है इसके अंदर, 116 ए वोट ऑन अकाउंट। इन विच ईयर द रेलवे बजट विल बी इंक्लूडेड इन बजट? तो रेलवे बजट बाद में ऐड हुआ था, पहले रेलवे बजट अलग से पेश किया जाता था, लेकिन अब जो है सब एक साथ यूनियन बजट में ही रेलवे बजट को पेश किया जाएगा। वो कौन से ईयर में हुआ था? 2017-18। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। 2017-18 में रेलवे बजट को यूनियन बजट में शामिल कर लिया गया था, ठीक है। 1924 से 1924 में रेलवे बजट जो है सेपरेट था। 1924 से मतलब 1924 से लेकर के 2017 तक सेपरेट था, सेपरेट रेलवे बजट पेश किया जाता था। बट 2017 के बाद ऑनवर्ड्स उसे यूनियन बजट में ही पेश किया गया। अकॉर्डिंग टू रेलवे बजट 2016, रेलवे यूनिवर्सिटी विल बी स्टैब्लिश्ड इन विच? क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है। रेलवे यूनिवर्सिटी कहाँ पे इस्टेब्लिश किया जाएगा? तो ये पेश किया जाएगा वडोदरा में। कहाँ पे? वडोदरा में रेलवे यूनिवर्सिटी जो है पेश किया जाएगा, आई मीन बना इस्टेब्लिश किया जाएगा। वडोदरा गुजरात में रेलवे यूनिवर्सिटी, वडोदरा गुजरात। फाइनेंशियल डेफिसिट वर्ड इज रिलेटेड टू विच मिनिस्ट्री? तो फाइनेंशियल डेफिसिट तो सभी को पता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री। नाम ही फाइनेंशियल है तो फाइनेंस ही रहेगा ना। बजट रिलेटेड टर्म है ये। हु हैज प्रेजेंटेड 2018-19 यूनियन बजट इन पार्लियामेंट? 18-19 का किसने किया था? तो आपको पता होना चाहिए कि उस समय पे फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? अरुण जेटली थे। अरुण जेटली उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर थे 2018-19 के। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री प्रिपेयर्स द फिस्कल पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? तो फिस्कल पॉलिसी जो है ये कौन सा पॉलिसी होता है जिसमें गवर्नमेंट जो है अपने इनकम को और एक्सपेंडिचर को नेशनल इनकम, प्रोडक्शन, पॉजिटिव इफेक्ट, एम्प्लॉयमेंट, निगेटिव
इफेक्ट को हटाना, एम्प्लॉयमेंट, ये सब चीज़ के लिए यूज़ करती है। तो आपको बताना है कौन सा मिनिस्ट्री है, फाइनेंस मिनिस्ट्री। टू ब्रेक द ट्रेडिशन ऑफ एन ओल्ड सेंचुरी, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीजेस फर्दर फॉर मोर वन मोर मंथ टिल 1 फरवरी 2017, अनाउंसमेंट ऑफ बजट। ठीक है, तो एक एक्स्ट्रा महीना लिया गया था 1 फरवरी 2017 में, किस चीज़ के लिए, अनाउंसमेंट ऑफ बजट के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट इज अंडर द सबऑर्डिनेशन ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर कौन सा आएगा। ठीक है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट यस, इकोनॉमिक अफेयर्स यस, एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट यस, ऑल ऑफ दिस। हु इज द चेयरमैन ऑफ द 15th फाइनेंस कमीशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसका आंसर है एन.के. सिंह। सो एन.के. सिंह was the 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन, एन.के. सिंह। 11th फाइनेंस कमीशन के कौन थे, तो 11th कमीशन के थे ए.एम. खुसरो, एम 11th खुसरो फाइनेंस कमीशन। जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स इम्पोज्ड इन इंडिया, व्हाट इज इट्स फुल फॉर्म, तो जीएसटी का फुल फॉर्म सबको पता है, क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सो वी हैव started the new chapter, chapter number 9, and what is the name, taxation. The name of the chapter is taxation in India. तो जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, इसका फुल फॉर्म क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इनकम डिक्लेरेशन ईयर स्टार्टेड इन डैश बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, तो इनकम टैक्स डिक्लेरेशन ईयर 2016 में स्टार्ट हो गया था। Which of the following is not a GST rate slab in India? 10%, 10% का जीएसटी स्लैब है ही नहीं, 5 का है, 18 का है, 28 का, लेकिन 10% का नहीं है। ये पहले की बात थी, लेकिन बाद में चीज़ें बदलते गई। ठीक है, व्हाट इज द मैक्सिमम स्लैब परसेंटेज फॉर जीएसटी, सबसे ज़्यादा किसके अंदर है, 28%। ठीक है, 28%। तो जीएसटी जो है आपको बताना है कि कौन से आर्टिकल के अंदर ऐड किया गया था, आर्टिकल 279A, आर्टिकल 279A में जोड़ा गया था जीएसटी को। व्हेन वाज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स स्टार्टेड इन इंडिया, जीएसटी कब स्टार्ट हुआ था इंडिया में, 1 जुलाई 2017, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 जुलाई 2017 जीएसटी स्टार्टेड इन इंडिया। नेक्स्ट, जीएसटी स्टार्टेड वाज इन इंडिया, जीएसटी स्टार्टेड 1 जुलाई 2017, 1 जुलाई 2017 को जीएसटी स्टार्ट हुआ था। व्हाट आर द 4 टैक्स रेट्स इन इंडिया अंडर जीएसटी, तो टैक्स रेट्स कौन कौन से थे, 5, 12, 18, 28, 5, 12, 18, 28, 5%, 12%, 18% एंड 28%। डैश टैक्सेस आर लिवाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट तो एक्साइज ड्यूटी लगाती है, किसके ऊपर, एक्साइज ड्यूटी लिकर के ऊपर, जो बियर है या फिर वाइन होता है इसके ऊपर। डैश टैक्सेस आर लिवाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन इंडिया, एक्साइज ड्यूटी ऑन लिकर। नेक्स्ट, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग जीएसटी, जीएसटी से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। जीएसटी जुलाई 1 इज द सेलिब्रेटेड जीएसटी डे बाय सेंट्रल ऑफ, यस बिल्कुल सही, 1 जुलाई 2017 ये जीएसटी डे है, बिल्कुल करेक्ट है। इंडिया हैज चोजन कनाडाज स्ट्रक्चर फॉर डुअल जीएसटी, कनाडा स्ट्रक्चर को यूज किया है, ये भी बात सही है। जीएसटी कैन नॉट बी कलेक्टेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, जीएसटी स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट नहीं कर सकती, ऐसी बात नहीं है, लीकर के ऊपर तो कर ही सकती है ना। ठीक है, तो ये गलत बात हो गया। फ्रांस इज द फर्स्ट कंट्री टू इंट्रोड्यूस जीएसटी, ये बिल्कुल सही बात है, फ्रांस पहला कंट्री था। तो जो रॉन्ग स्टेटमेंट है वो जीएसटी स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर सकती, लीकर के ऊपर तो कर ही सकती है, टैक्स ले सकती है। सो वी हैव एंडेड विद द 300 क्वेश्चंस। सो क्वेश्चन नंबर 200 to 300 कर लिए हैं हम लोग, तो पार्ट 3 वीडियो एंड्स हियर। So those who are viewed first to the channel, join us for the next video for sure short selection in the railway examinations and other government examinations.
So this is Professor Ravi Ranjan sir. Thank you very much for joining, and let's meet in the next video. Thank you.